اے اللہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے سماج کے اندر رہنے والے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا ہم نے خیال رکھا ہے، اے اللہ سال کے 11 مہینے اپنے سماج کے اندر رہنے والے جو غریب لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو، اے اللہ سارے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا بیوہار ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رمضان سکھلاتا ہے اے مسلمان تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے، یو کین چینج یور سیلف۔ اے مسلمان تو غیبت کرنے کا عادی ہے، یو کین چینج یور سیلف۔ رمضان ہمیں سکھلاتا ہے اے مسلمان تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے، سود خوری کرنے کا عادی ہے، یو کین چینج یور سیلف۔ رمضان ہمیں سکھلاتا ہے اے مسلمان تو شراب پینے کا عادی ہے، تو نشے کا عادی ہے، یو کین چینج یور سیلف۔ You were not created just to eat۔ رمضان ہمیں سکھلاتا ہے اے انسان تو دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے نہیں پیدا، مستی کرو، زندگی گزارو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رہے رب کا اصول، قرآن کا یہ اصول یاد رہنا چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دنیا کے اندر آئے ہو تو رب کی بندگی کے لیے آئے ہو، اور رب کی بندگی کب تک کرنی ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے تک نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بڑے افسوس کی بات ہے رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہم نمازیں شروع کرتے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈونٹ ٹیک اوے دا رائٹس آف ادرس۔ رمضان یہ سکھاتا ہے اے ایمان والو دوسروں کے حقوق مت کھاؤ۔ دنیا کہتی ہے مسلمان ظالم ہے، دنیا کہتی ہے مسلمان دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے، ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے اسلام اور اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں، اسلام اور اسلامی تعلیمات ہمیں اور آپ کو یہ پیغام، یہ نصیحت کرتی ہیں کہ مسلمان اگر شریعت پر حقیقی معنوں میں اتباع کرنے والا، فالو کرنے والا ہے، اسلام یہ کہتا ہے 1,00,000 2,00,000 تو بہت دور کی بات ہے، 1 پیسہ بھی ناجائز طور پر مسلمان کے لیے کسی اور کا لینا جائز۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز حاضرین، دینی و اسلامی بھائیوں، قوم و ملت کے ہونہار نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بار پھر رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا اور ہم سے رخصت بھی ہوا۔ عید کی نماز ابھی ادا کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جب آپ قرآن کریم کے اندر رمضان کے تعلق سے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو ایک بڑی عجیب بات آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایام معدودات، اے ایمان والو رمضان کا یہ مہینہ
माह रमज़ान के ये रोज़े गिनती के चंद दिन हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों के बारे में ये क्यों कहा कि ये गिनती के चंद अय्याम हैं? दरअसल बताना मकसद ये है कि रमज़ान के अय्याम, रमज़ान के रोज़े इतने मुख्तसर हैं, गिनती के चंद अय्याम हैं। रमज़ान कब शुरू होगा, कब ख़त्म हो जाएगा, तुमको एहसास भी नहीं होगा। और यकीनन ऐसा ही होता है। हर साल हम देखते हैं रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान ख़त्म हो जाता है। खुद इसी साल का रमज़ान ऐसा लग रहा है कि अभी कल की बात है, कल रमज़ान शुरू हुआ था, आज ईद की नमाज़ पढ़ने चले आए। तो रमज़ान की हकीकत अल्लाह ने बयान की है कि रमज़ान कब आएगा, कब ख़त्म हो जाएगा, तुमको एहसास भी नहीं होगा, शऊर भी नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, माह रमज़ान का आना और रमज़ान का चला जाना, इसके अंदर हमारे और आपके लिए, दुनियाई इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सारी इबरत की चीज़ें हैं, बहुत सारी नसीहत की चीज़ें हैं। चंद बातें मैं इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से रखना चाहूँगा। द मैसेज ऑफ रमज़ान, रमज़ान का पैगाम। जब आप रमज़ान के महीने पर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रमज़ान का महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है। रमज़ान का सबसे पहला पैगाम हमारे और आपके लिए है, इताअत रसूल को लाजिम पकड़ो। रमज़ान हमें सिखाता है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को अपने लिए उसवा और नमूना बनाओ। रमज़ान के महीने के अंदर हम देखते हैं साल के 11 महीने मुसलमानों के घरों के अंदर आपको सन्नाटा नज़र आएगा, लेकिन रमज़ान के महीने के अंदर फजर से पहले आपको हर मुसलमान घर के अंदर चहल पहल नज़र आएगी। भाई सहरी करता हुआ इंसान दिखाई देगा, फजर की नमाज की अदायगी होगी। फजर की नमाज के बाद सुबह से लेकर के शाम तक एक मुसलमान रोज़े से रहता है, और जैसे शाम का टाइम होता है फिर इफ्तारी करता है। मेरे भाई और दोस्तों, माह रमज़ान की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, फजर से पहले सहरी करना। हम सहरी क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। सुबह से लेकर के शाम तक हम भूखे रहते हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हमको यही सिखलाया है। शाम का टाइम होता है, हम इफ्तारी करते हैं। भाई क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी का ये हुक्म है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ अदा करने के बाद हम तरावी की नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? भाई इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही तालीम दिया, यही हमको सिखलाया है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें कहीं ना कहीं इताअत रसूल का पैगाम देती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इताअत रसूल सिर्फ सहरी करने के मामले में? क्या नबी की इत्तिबा, नबी की इताअत सिर्फ रोज़ा रखने के मामले में की जाएगी? क्या नबी की इत्तिबा सिर्फ इफ्तारी करने में, तरावी की नमाज़ अदा करने में की जाएगी? नहीं मेरे भाई और दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमें ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमको करनी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, उस्वा है, नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर एक पहलू के अंदर, हर एक गोशे के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी नसीहत की चीज़ें हैं। जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, हमें नमाजें कैसे पढ़नी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लो। शादी ब्याह कैसे करने हैं, नबी की ज़िंदगी देख लो। तिजारत और कारोबार कैसे करने हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देख लो। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमें इत्तिबाए रसूल को लाजिम पकड़ना पड़ेगा। रमज़ान ख़त्म होने के बाद अभी हमने 2 रकात नमाज जो पढ़ी है, ये खुतबा क्यों हो रहा है? भाई इसलिए कि अल्लाह के नबी की तालीमात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं है, ज़िंदगी के हर एक गोशे में नबी की इत्तिबा की जाएगी, क्योंकि इत्तिबाए रसूल ही वो चीज़ है जो आपको दुनिया के अंदर सरबलंदी अता करेगी। इत्तिबाए रसूल ही वो चीज़ है जो मरने के बाद कल क़यामत के दिन आपको मैदान महशर के अंदर इज्जत व सरबलंदी अता करेगी। इत्तिबाए रसूल ही वो चीज़ है जो मैदान महशर के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर आपको नसीब करेगी। इत्तिबाए रसूल ही वो चीज़ है जो आपको जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिला आपको दिलवाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब ये है, रमज़ान हमें और आपको सबसे पहला पैगाम देता है, नबी की इत्तिबा, नबी की इताअत को लाजिम पकड़ो। और आगे बढ़िए, रमज़ान का ये महीना हमें और आपको कुछ और सिखलाता है। भाई रमज़ान का ये महीना हमें सिखलाता है, यू कैन चेंज योर सेल्फ। रमज़ान हमें बताता है कि आप खुद को तब्दील कर सकते हो। साल की 11 महीने हमारी डेली रूटीन क्या है? भाई साल के 11 महीने हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं,
असर के बाद फिर चाय पानी करते हैं, मगरिब के बाद खाना खाते हैं। लेकिन जैसे रमज़ान का महीना आता है, इंसान मुसलमान सुबह का नाश्ता भूल जाता है, दोपहर का खाना नहीं खाना है भाई, असर के बाद चाय पानी की ये होटलबाजी बंद करनी है। मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें हमें और आपको पैगाम देती हैं, ये चीज़ें हमको सिखलाती हैं। यू कैन चेंज योरसेल्फ। रमज़ान के महीने में खाना छोड़ सकते हो, रमज़ान के महीने में पानी छोड़ सकते हो। खाना हलाल है, पानी हलाल है, लेकिन नबी का ऑर्डर है, कुरान का ऑर्डर है, इस्लाम की तालीमात हैं। इंसान खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, यू कैन चेंज योरसेल्फ। रमज़ान सिखलाता है, ऐ मुसलमान तू झूठ बोलने का आदी है, यू कैन चेंज योरसेल्फ। ऐ मुसलमान तू गीबत करने का आदी है, यू कैन चेंज योरसेल्फ। रमज़ान हमें सिखलाता है, ऐ मुसलमान तू झूठ बोलने का आदी है, सूदखोरी करने का आदी है, यू कैन चेंज योरसेल्फ। रमज़ान हमें सिखलाता है, ऐ मुसलमान तू शराब पीने का आदी है, तू नशे का आदी है, यू कैन चेंज योरसेल्फ। माह रमज़ान हमें सिखलाता है, ऐसी कौन सी बुराइयां हैं, ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसको तू चेंज नहीं कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये माह रमज़ान का दूसरा पैगाम है। इसी तरीके से रमज़ान का ये महीना हमें और आपको एक पैगाम ये भी देता है। रमज़ान हमें सिखाता है, यू वेर नॉट क्रिएटेड जस्ट टू ईट। रमज़ान हमें सिखलाता है, इंसान तो दुनिया के अंदर सिर्फ खाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। रमज़ान के महीने में हम देखते हैं, साल के 11 महीने एक मुसलमान जिस कदर खाने पीने का एहतमाम नहीं करता है, रमज़ान के महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो खाने का एहतमाम हमारे यहाँ होता है, चाहे सहरी का मामला हो, इफ्तारी का मामला हो, जो एहतमाम रमज़ान में हम करते हैं, साल के 11 महीने वो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती हैं। लेकिन एक तरफ अगर खाने का एहतमाम होता है तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, नमाज़ों का माहौल नज़र आता है। रमज़ान के महीने में अगर खाने का खूब एहतमाम होता है तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 1-1 घंटा तरावी का एहतमाम भी होता है। रमज़ान में अगर खूब खाने का एहतमाम होता है तो रमज़ान के महीने के अंदर हम ये भी देखते हैं, बहुत सारे अल्लाह के बंदे रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ में बैठते हैं। रमज़ान में अगर खूब खाने का एहतमाम होता है तो क़यामुल लैल भी होता है, क़द्र की रातों की तलाश और जुस्तजू भी होती है। मेरे भाइयों दोस्तों, माह रमज़ान हमें यही सिखलाता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ मुसलमानों, दुनिया के अंदर सिर्फ खाने के लिए नहीं गए हो, सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हो, इंजॉय करने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं आए हो। खूब खाओ, इंजॉय करो, मस्ती करो, ज़िंदगी गुजारो, लेकिन साथ ही साथ याद रहे रब का उसूल, कुरान का ये उसूल याद रहना चाहिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया के अंदर आए हो तो रब की बंदगी के लिए आए हो, और रब की बंदगी कब तक करनी है? शव्वाल का चाँद देखने तक नहीं, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। बड़े अफसोस की बात है, रमज़ान का चाँद देख करके हम नमाजें शुरू करते हैं और शव्वाल का चाँद देख करके नमाजें छोड़ देते हैं। रमज़ान का चाँद देख करके तिलावत कुरान का आगाज़ होता है और शव्वाल का चाँद नजर आने के बाद तिलावत कुरान हम बंद कर देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर को खिताब कर रहा है, ऐ नबी, मरते दम तक अपने रब की इबादत कीजिए, मरते दम तक अल्लाह की बंदगी करनी है। मेरे भाई और दोस्तों, ये तीसरा पैगाम है माह रमज़ान का कि आप दुनिया के अंदर सिर्फ खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो। इसी तरीके से रमज़ान का एक और पैगाम है, रमज़ान हमें और आपको इत्तिहाद का पैगाम देता है। रमज़ान के महीने के अंदर हम देखते हैं बाजमात नमाज़ों का एहतमाम, बाजमात क़यामुल लैल करना, बाजमात रमज़ान के महीने के अंदर इबादतों का एहतमाम करना, और नडियाद की इस वसी वाली इस ग्राउंड के अंदर नडियाद के मुसलमानों का इकट्ठा होना। मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें हमें और आपको एक पैगाम देती हैं, गेट यूनाइटेड। ऐ मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, ऐ ईमान वालों, अपने अंदर इत्तिहाद को पैदा करो। इत्तिहाद वो ताकत है, वो पावर है, अगर इसको तुम अपना लो, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज कर लो। मेरे भाई और दोस्तों, तारीख शाहिद है, तारीख इस बात पर गवाह है, अगर इत्तिहाद को आपस में पैदा कर लिया जाए तो समंदर के सीने को चाक किया जा सकता है। अगर अपने अंदर इत्तिहाद को पैदा कर लिया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई मजबूत ताकत नहीं है जिसको अपने घुटनों पर टेकने पर मजबूर न किया जा सके। अगर आपस में हम इत्तिहाद को पैदा कर लें, इत्तिहाद वो पावरफुल हथियार है, वो पावरफुल चीज़ हमारे और आपके पास आ जाएगी कि हम उसके ज़रिए से दुनिया के ऊपर हम गालिब हो सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, रमज़ान का ये महीना हमें और आपको इत्तिहाद का पैगाम देता है, इत्तिहाद का पैगाम देता है। बड़े अफसोस की बात है, आज हम अपने आप को
किताबुल्लाह सुन्नत रसूल का मानने वाला ज़रूर कहते हैं, इत्तिबाए रसूल और इत्तिबाए सुन्नत की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों हमारी सफ़ों के अंदर इत्तिहाद नहीं है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे ईमान वाले भाइयों के तई, जमात व जमीयत के तई, मुसलमानों के तई अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक को पैदा फरमा। ये चौथा पैगाम है रमज़ान का। इसी तरीके से एक और पैगाम है माह रमज़ान का। रमज़ान का महीना हमें और आपको एक पैगाम देता है, डोंट टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर्स। रमज़ान ये सिखाता है, ऐ ईमान वालों दूसरों के हुकूक मत खाओ, दूसरों के हुकूक मत खाओ। रमज़ान के महीने के अंदर हम देखते हैं शाम का टाइम होता है, इफ्तारी पर हम बैठे हुए होते हैं, दस्तरखान पर जो चीज़ें रखी हुई होती हैं उस पर हमारा हक होता है। घर हमारा है, दस्तरखान हमारा होता है, इफ्तारी के सारे सामान हमारे होते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं। भाई क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना किया है। अजान होगी उसके बाद इफ्तारी करना है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, खजूर को हाथ में लिए हुए होते हैं लेकिन नहीं खा रहे हैं। भाई क्यों? भाई हक हमारा है, खा सकते हैं, नहीं खाते हैं, क्यों? इसलिए कि शरीयत ने मना किया है। मेरे भाई और दोस्तों रमज़ान की एक्टिविटी हमें बताती है, ऐ ईमान वालों जब हक तुम्हारा है, माल तुम्हारा है, खाना तुम्हारा है, नहीं खा रहे हो, ऐ गैरतमंद मुसलमानों दूसरों के हुकूक पर धावा कैसे बोल रहे हो? दूसरों के हुकूक कैसे खा रहे हो? अपने भाई की दौलत को, अपने भाई की प्रॉपर्टी को हड़प कैसे कर रहे हो? बाप की इंतकाल के बाद विरासत के अंदर बहनों का हिस्सा है, बहनों की विरासत कैसे खा रहे हो? मेरे भाई और दोस्तों रमज़ान की एक्टिविटी हमें बतलाती है, ऐ ईमान वालों दूसरों के हुकूक मत खाओ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जब रोज़ों का जिक्र किया, रोज़ों के मसाइल को बयान करने के बाद बिल्कुल लास्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों बातिल तरीके से अपने माल को मत खाओ, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ। मुफस्सिरीन कहते हैं रमज़ान के मसाइल को बयान करने के बाद, रोज़ों का तज़किरा करने के बाद, दुआओं का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का जिक्र करके दरअसल बताना ये चाहता है, ऐ ईमान वालों पूरे रमज़ान का नहीं, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखते रहो, पूरी ज़िंदगी दुआएं करते रहो। अगर तुम्हारे पेट के अंदर जाने वाला निवाला हराम का है, नाहक है, नाजायज़ है, याद रखो तुम्हारी सारी की सारी इबादतें तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी। मेरे भाई और दोस्तों आज दुनिया कहती है मुसलमान जालिम है, दुनिया कहती है मुसलमान दूसरों के हुकूक पर कब्जा करने वाला है। ऐसे लोगों को ये पैगाम पहुँचाना चाहिए, ऐसे लोगों को बताना चाहिए इस्लाम और इस्लामी तालीमात तो ये हैं, इस्लाम और इस्लामी तालीमात हमें और आपको ये पैगाम, ये नसीहत करती हैं कि मुसलमान अगर शरीयत पर हकीकी मानों में इत्तिबा करने वाला, फॉलो करने वाला है, इस्लाम ये कहता है लाख 2 लाख तो बहुत दूर की बात है, एक पैसा भी नाजायज़ तौर पर मुसलमान के लिए किसी और का लेना जायज़ नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों ये चंद पैगामात थे रमज़ान के ताल्लुक़ से। आखिर में एक बहुत बड़ा मजमा मेरे सामने है, रमज़ान का महीना गुजर चुका है। मेरे भाई और दोस्तों मैं कुछ अहद व पैमान लेना चाहूँगा आपसे, कुछ वादे करना चाहूँगा आपसे, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आवाज़ नहीं आ रही है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। रमज़ान का महीना गुजर चुका है, ईद की नमाज की मुनासिबत से यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। खुले आसमान के नीचे मुनकर नकीर भी हमारे कांधों पर मौजूद हैं। रब्बे दुल जलाल जो अलीम बिदात सुदूर है, अल्लाह तबारक व तआला भी हमें देख रहा है खुले आसमान के नीचे। आइए अपने आप से कुछ अहद व पैमान करते हैं। सबसे पहला तो अहद ये करते हैं क्या अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के महीने के अंदर हमने तेरी इबादत की है, साल के 12 महीने इस तरीके से तेरी इबादत हम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के महीने के अंदर हमने तिलावत कुरान को लाजिम पकड़ा, ऐ अल्लाह साल के 11 महीने इंशाअल्लाह तिलावत कुरान का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के महीने के अंदर हमने फ़राइज़ की पाबंदी की है, नवाफिल का एहतमाम किया है, सदक़ात व खैरात का एहतमाम किया है, ऐ अल्लाह नडियाद के इस ग्राउंड के अंदर हम इस बात का एतराफ़ करते हैं, अहद व पैमान करते हैं, साल के 11 महीने इसी तरीके से अल्लाह तेरी बंदगी हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के महीने के अंदर हमने उख़्वत व भाईचारे का मुज़ाहरा करते हुए समाज के अंदर रहने वाले गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का हमने ख्याल रखा है, ऐ अल्लाह साल के 11 महीने अपने
समाज के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे उनका ताल्लुक इस्लाम से हो या ना हो, ऐ अल्लाह सारे लोगों के साथ हमदर्दी का, मोहब्बत का व्यवहार हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, इन्हीं चंद कलिमात पे इक्तफा करते हुए आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि मौलाए करीम रमज़ान के इस महीने के अंदर हमने जो इबादतें की हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम किस्म की इबादतों को कबूल फरमा ले। मेरे भाई और दोस्तों, इबादतें करना कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएं। इसलिए हमारे असलाफ रमज़ान के गुजरने के बाद 6-6 महीना दुआएं किया करते थे, दुआएं करते थे कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे दुआ करते हैं, जो हमने इबादतें की हैं, चाहे वो माली हो चाहे वो बदनी इबादतें हो, ऐ अल्लाह उन इबादतों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के महीने के अंदर हम तुझसे करीब रहे, ऐ अल्लाह तुम्हें इस बात की तौफीक दे साल के दीगर अय्याम के अंदर भी हम तेरे करीब हो करके तेरे मुकर्रब बंदे बन सकें। ऐ अल्लाह इस बड़े मजमे की मुनासिबत से हम तुझसे ये भी दुआ करेंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हुए ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अमन व अखुवत की, भाईचारे की, मोहब्बत की फ़ज़ा और माहौल को कायम कर दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर आए दिन हम देख रहे हैं हवा जहर आलूद होती जा रही है, माहौल जहर आलूद होता जा रहा है। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर प्यार की, मोहब्बत की हवा को चला दे, अमन और अखुवत की हवा को चला दे, पहले जैसी मोहब्बत और उल्फत को कायम कर दे। ऐ अल्लाह हम साथ ही तुझसे ये भी दुआ करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी तेरे बंदे जुल्म व तशद्दुद के शिकार हैं, उनको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, ऐ अल्लाह तुझसे हम दुआ करते हैं मौलाए करीम तो उनको जालिमों के शिकंजे से निजात दे दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कंट्री में अगर कोई शख्स जुल्म कर रहा है, कोई जालिम है, कोई सितमगर है, ऐ अल्लाह हम दुआ करते हैं कि उन जालिमों से इंतकाम ले ले, उन जालिमों से तू ही बदला ले ले, जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह उनको दुनिया के अंदर जलील कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर उनको जिल्लत और रुसवाई उनकी मुकद्दर बना दे। ऐ अल्लाह तेरे गुनहगार बंदे तुझसे दुआ कर रहे हैं, तेरे गुनहगार बंदे हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, हमें जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं ऐ अल्लाह उनके लिए कर्ज की अदायगी के रास्ते उनके लिए हमवार कर दे। ऐ अल्लाह जो औलाद के तई परेशान हैं, ऐ अल्लाह उनको बेटों से बेटियों से नवाजे। ऐ अल्लाह जो बिजनेस कारोबार को लेकर के परेशान हैं, ऐ अल्लाह तो उनके लिए बिजनेस और तिजारत के रास्ते उनके लिए आसान फरमा, उनके मसाइल उनके लिए आसान फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।